Yes, I've been and the ones you गुरुदेव के आदेश के सच प्रेम के नित्य नेम के सधर्म के सतपम के अज्ञान की अभिमान की सेवा करने को दास की परिवार नहीं हो जाने की जिसे वो विश्व में से इश्क वो राम में और कृष्ण में जग देश में जगदीश में हम वीर हो अति धीर हो उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रत खंभीर हो ईश्वर हो आचार्य से तन मन हमारा सर्वदा अध्यात्म की शक्ति हमें पर भी नहीं करती आत्मा का हमें हर श्वास भर में कम रहे अगर मौत भी आए सुख दुख से So, today's speaker will now start with the this webinar for class 11. Yeah. So good afternoon, everyone. Let's start. Today we will be discussing actually a publication given by CADQ for the covering the reasons for the modifications issued by in the companies listed in the BSE. So let's start. Unbreaking SA 705 when auditors modify their opinion. Let's first understand what basically SA 705 tells you. SA 705 is basically covering the modification
So if we look at the modifications, then it can be of two types. Uh, so now, if they look at the modifications, it can be of basically three types: qualified, adverse, and disclaimer. Qualified opinion is like that we have find an issue, but it's not something that will affect the overall financial statement. It's an issue that pertaining to a single line item or something, but it's not something that will affect my overall financial statements. If we look at the example, then it's like that. And there is a material statement, but it's not pervasive. Is there a limitation of scope that does not significantly affect the financial statements? एक्सेप्ट करना है, एडमिट कर लीजिए, नहीं एडमिट कर लीजिए वीडियो। हाँ प्रेजेंटेशन ग्रुप पे भी शेयर किया ना?
हाँ सर So show me. अभी हाँ अब आ गया सर आगे चलो आगे चलो चलो सब मूव हो रही है प्रेजेंटेशन So CADQ is basically covered around 261 companies, in which 344 independent audit reports are found to contain modified opinions. Well, these if we see that these audit reports cover around 93 types of industries. Now we will see what were the reasons for the modifications. These modifications, we see that 317 were qualified opinions, 9 were adverse, and 18 were disclaimer of opinion. The reasons we see in a pie chart form. Then around 20% of the reasons were due to SA 570 going concern, 505 external confirmation 16%, 250 compliance of laws and regulations 12%. India's 19 employee benefits covering around 17%, 7%. India's 109 financial instruments, 14% of the modified opinions were due to India's 109. India's 37, 11%, and India's 36, 9%. The common themes of the audit conclusions that were issued, around 73 were around these topics only. Going concern, financial instruments, in the remaining. Well, what is the management response to qualifications? Well, they can do apply corrective actions to rectify the mistakes. Disclosure of information. What are the disclosure they provide to give in the financial statements, and the future plan? What will be their future plans in accordance to the modified, according to the issues brought to picture by auditor? थोड़ा इधर भी एक्सप्लेन तो कर दिया करें ये सारे बच्चे अभी तुम उधर देखोगे वो उधर देखने लग जाएंगे. Now one by one they will explain what are the reasons for the modified opinions. अच्छा तेरा इतने फर्स्ट रीजन है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. तो सबसे पहले अपन समझते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है और किस किस पे एप्लीकेबल होते हैं. तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, इन सब पे एप्लीकेबल होते हैं. और प्राइवेट कंपनीज पे जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है प्रीवियस ईयर और जिनका 25 करोड़ से ऊपर बोरोइंग्स ले रखी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और 1% और स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते. अब इसका एग्जांपल से समझते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है. सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट करते हैं. जैसे कि honesty is important as अदरक इन चाय. Everyone understand the importance of integrity. सबसे पहले सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं. तो सीसीटीवी कैमरा must wear as दिल हिंदुस्तानी बट आंखों की रोशनी जरूरी. अब व्हाट कुड रॉन्ग डिस्कस कर सकते हैं. तो राजू है वो अपने दोस्तों को चाय फ्री में बांट सकता है, और बंटी है वो आधा कप बेच के फुल कप का चाय के पैसे लेके आ सकता है. अब इसके लिए क्या क्या अपन कंट्रोल लगा सकते हैं. तो ड्यू अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ चाय पत्ती एंड गैस सिलेंडर, राजू कुड प्लेस द ऑर्डर बट द फाइनल अप्रूवल कम्स फ्रॉम द एरिया मैनेजर. और डिलीवरी ट्रक चेक, we make sure double checks every delivery trucks before it leaves from the godown to ensure no chai is missing, because one chai का डब्बा missing profit है 50. अब information communication, masala report, sales report. Masala report includes the information related to sales, number of cups sold, wastage, trucks how many chai are wasted. और रिकॉर्ड करना कि ऐसे बहुत लोग होते हैं मैं कल लौटाता हूँ, तो उनके बारे में भी रिकॉर्ड रखना.
अब मॉनिटरिंग एक्टिविटीज लाइक रेगुलर विजिट करना, सीक्रेट ऑडिट करना, उसको चेक करना। अब एक ट्विस्ट लेते हैं। और राजू था जो अपना चाय बेचता था, उसने सजेस्ट किया कि दार्जिलिंग से चाय मंगाते हैं और अपने मुंबई के स्टोर के लिए। उसको अप्रूवल मिल जाती है स्टोर में जैसे, और इनवॉइस शोज ए सस्पिशियस एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक चार्जेस ऑफ 10,000 रुपीस। अब राजू secretly struck the deal and supplier for his commission। जो लॉजिस्टिक चार्जेस थे कमीशन के लिए थे राजू के। तो राजू अपना एडवांटेज लेता है अपनी पोजीशन का। अब जो ऑनर था उसने बोला कि जो चाय के साथ समोसा भी चाहिए था क्या। राजू came rebel and he was disappointed and shamed। Raju action will address appropriately and our system will review to ensure that this don't happen again। इसका मतलब एक कंट्रोल सेट करना पड़ता है सबसे पहले, तो उसके बाद रिस्क असेस करना पड़ता है कि क्या कहाँ पे है, उसके बाद में उसके रिलेटेड अपने को कंट्रोल सेट करना पड़ता है और रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। ये इंटर फाइनेंशियल कंट्रोल का होता है। अब जिसमें से मोस्टली जो होते हैं मतलब लिस्टेड कंपनीज है जिनमें 54% कंपनीज के अंदर तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ही नहीं है। बाकी है जिनमें है बट वो एप्रोप्रिएटली कंट्रोल नहीं कर रहे। अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं हो रहे, जैसे कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, टायर्स एंड रबर प्रोडक्शन, टेलीकॉम, सेल्युलर, लैंड सर्विसेज एंड अदर्स। एक एग्जांपल लेते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन जिसमें इंटरनल कंट्रोल के चैलेंजेस क्या थे। अब उनकी जो इंटरनल कंट्रोल टीम थी वो लैक ऑफ कंट्रोल एडजस्टिंग द इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स एंड लायबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल असिस्टेंस, कॉर्पोरेट गारंटी, कमिटमेंट्स, इनसे रिलेटेड उनके पास इंटरनल कंट्रोल्स नहीं थे। कंप्लायंस, इवन वो लोग एजीएम की मीटिंग में टाइमली वो नहीं कर पा रहे थे। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हुआ, उसके बाद में provision, contingent liability and contingent assets, India 37। तो ये इन्होंने जो अपने राजू बंगया जेंटलमैन से जो इन्होंने एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने ये कहा कि सर जो ये राजू है, ये दिस राजू वी विल फाइंड एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह कहीं ना कहीं कोई न कोई राजू होता है और वो राजू अपनी पोजीशन को यूज करता है for his or her own benefits। ठीक है, तो हमें ये देखना है एज एन इंटरनल कंट्रोल कि क्या इस तरीके की कोई लीकेजेस तो सिस्टम में नहीं है कि देयर आर नो कंट्रोल्स में भी मोमेंट देयर इज वॉल्यूमियस बिजनेस, जहां तक एक छोटी कंसर्न है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है, या कोई एक 1% कंपनी है या एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वहां तक ये जो राजू है वो कौन है, वो प्रमोटर खुद है। तो प्रमोटर को तो अपना खुद का इंटरेस्ट ध्यान में रखना है, तो वो अपनी कंपनी को ठीक से चलाएंगे। बट मोमेंट देयर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, मोमेंट देयर आर अदर पर्सन्स इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट, जैसे इन्होंने कहा कि राजू वाज हु, ही वाज एरिया मैनेजर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो भी गुवाहाटी में इन्होंने बताया कि वहां पे वो चाय बेच रहा है या समोसे बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, तो वो कोई ना कोई इस तरीके का अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ डाइवर्जन ऑफ सेल हो जाए, है ना, कुछ वेस्टेज एक्स्ट्रा हो जाए। तो हमें जब भी हम बिजनेस में जब ऑडिट कर रहे होते हैं, तो ऑडिट का मतलब केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका सेल्स रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिकॉर्ड हो गया, इतना ही नहीं होता। हमारा जो सेक्शन 143(1)(j कौन सा एफसी वाला क्लॉज, एच, तो उस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए आपको जो इन्होंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात कही, तो वो आपको चेक करने होते हैं, और अगर वो वीक है तो आपको ये भी देखना होता है कि इसकी वजह से जो मेन ओपिनियन है, यहाँ पे सब जगह मेन ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो मेन रिपोर्ट है दैट वाज द मॉडिफाइड ओपिनियन।
क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अच्छा इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है तो केवल जो इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट में रिपोर्ट करना वही रिपोर्ट देना जरूरी है। अगर उसकी वजह से आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो देन यू नीड टू मॉडिफाई योर ओपिनियन आल्सो। So this is a consequential impact of lack of internal financial control. तो क्या हम जब भी ऑडिट करते हैं तो किसी कंपनी का ऐप भी ऐसे देखते हैं, नहीं देखते हैं, ये हमें चेक करना होता है। तो जब भी आप ऑडिट करो तो सबसे पहले आप सिस्टम्स देखो, जहाँ कहीं पे विदेश में भी कहीं कहीं जगह आप लोग इंटरिम ऑडिट पे जाओगे तो फर्स्ट यू फोकस ऑन द सिस्टम्स आल्सो, कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, and that may lead to lack of IFC also. अब उसका modified और unmodified होगा, that is a different aspect. So what is modified opinion? इन्होंने ये तो explain कर दिया कि सब modified opinion होने चाहिए। Modified opinion है क्या? हर्षवर्धन क्या? यशवर्धन क्या है? Modified opinion क्या है? जो आपके स्टेटमेंट आपको लगता है कि ऐसी करके तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा करके कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो शेयर होल्डर्स का So it will affect the true and fair view. So there is a misstatement. तो ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? ये कि आपने थ्योरी तो पढ़ा हुआ है 705 में, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस तरीके के सिनेरियो में क्या चीज रिपोर्टिंग हुई, वो आज सब हम देख रहे हैं। तो हम बहुत ही लिमिटेड, जो 705 में आपने जो इसमें यशवर्धन ने बताया ना, जो 705 के अंदर जो बात आ रही है कि हम जब कोई आइटम कहीं मेटेरियल मिस्टेक हो रहा है बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन, so then it will be a modified opinion until and unless it is this sorry वो क्या एक opinion है disclaimer witness statement prejudicial sorry वो एक परवेसिव नहीं एडवर्स होता है तो क्या होता है एडवर्स को का मटेरियल परवेसिव सॉरी नॉट प्रेजुडिशियल आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड परवेसिव। जब तक वो परवेसिव नहीं है तब तक वो मॉडिफाइड में क्वालिफाइड होएगा, ठीक है। तो ये एक चार्ट हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए ताकि हम ये देखें कि साहब क्या वो चीज परवेसिव है या नहीं। जो ही परवेसिव होएगा तो फिर वो डिस्क्लेमर और एडवर्स में चला जाएगा, और जब तक परवेसिव नहीं है बट मटेरियल स्टेटमेंट है तो इट विल कम टू क्वालिफाइड। सेकंड केस था जिसमें कंटीन्यू इंडिया 37 के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था होल्डर्स ने। अब बेसिक डेफिनेशन समझते हैं प्रोविजन क्या होता है। जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है एनालाइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स और लेवल में मेजर कर सकते हैं उसको, एंड उसका अक्यूरेंस ऑफ हैपनिंग 50% से मोर होता है, उसको रिकॉग्निशन कहां होता है, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्निशन होता है उसका। अब कंटीन्यूअल लायबिलिटी क्या होती है, जिसमें पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, होना ही नहीं होना उस पर डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन पे, और उसको मेजर नहीं कर सकते, सर्टेनिटी नहीं होती उसका अमाउंट कितना है, एंड उसका अक्यूरेंस 50% से कम होता है, उसको अपन डिस्क्लोज करते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। पोटेंशियल एसेट्स क्या होते हैं कि पोटेंशियल एसेट्स सेम कंटीन्यूअल लायबिलिटी की तरह होते हैं, उनको भी अपन सर्टेन डिपेंड करता है किसी इवेंट होने पे, और उनका अमाउंट अपन सर्टेन नहीं कर सकते, एंड बट अगर वो असेट्स वर्चुअली सर्टेन होती है, 100% पॉसिबिलिटी होती है कि रिकॉग्नाइज करना है तो अपन इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अदरवाइज को अपन रिकॉग्नाइज नहीं करते, ऐसे कंटीन्यूअल एसेट डिस्क्लोज करते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। लक्ष्य हमारे बेस का लक्ष्य है। अब उसके शामिल कर देंगे। लक्ष्य ने अपने बॉस को प्रॉमिस किया था कि फ्राइडे को एक प्रोजेक्ट देगा, बट फ्राइडे थर्सडे नाइट को उसको रियलाइज होता है उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं किया, तो उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, प्रॉमिस टू बॉस। अब लक्ष्य को अब इसमें क्या है 20 आवर्स लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, लाइवली मेजरमेंट है, बट उसके लक्ष्य बस कितने घंटे, 10 घंटे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस उसको 100% पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लीट करेगा, अदरवाइज को बॉस का गुस्सा सहना पड़ सकता है। तो अब वो लक्ष्य ने क्या किया, लक्ष्य रिकॉग्नाइज हिज लायबिलिटी बाय पुटिंग इन ऑन हिज लाइव बैलेंस शीट, वर्क आई कांट अवॉइड इट। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं, विवेक सिरके।
Vivek agreed to play cricket with his friend, but realized his boss might call him for a meeting. Last meeting. The obligation, attending a meeting. But depends on the possible event, whether the boss remembers that Vivek exists. The liability is not very reliably measurable because Vivek has no idea if the meeting will happen. There is 50%, less than 50% chances that Vivek का boss उसको बुलाए. So अब instead of preparing the meeting, Vivek disclosed to his friend, I might have work, but let's see. एक रोहन's cousin that रोहन ने अपने एक cousin को 500 रुपए दिए, because क्यों दिए? क्योंकि वो kindness था, because of kindness. The cousin history suggested a low probability of repayment, making it contingent assets. Month later, the cousin unexpectedly repaid him, and at this point, the assets is no longer contingent, and Rohan celebrated by spending it all on period. अब ये कई केसेस है जिसके अंदर इंडिया 37 के अकॉर्डिंग ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया. मेनली 100% केसेस इनके अंदर प्रोविजन ही क्रिएट नहीं हो रहा था जो कंटीजेंट एसेट्स कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है. अब एग्जांपल लेते हैं. एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कंपनी है जिसने कंपनी की सेक्टर की. तो उसने क्या कर रखा था, उसके बुक्स के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी सब्सिडीज को. सब्सिडीज थी इनके टोटल वैल्यू थी 10 करोड़, बट उनकी एक्चुअल फेयर वैल्यू थी 3 करोड़. एंड उनकी एसोसिएट कंपनी थी पीक्यूआर लिमिटेड जिसकी वैल्यू बुक्स के अंदर 50 करोड़ 10 लाख थी, बट एक्चुअल फेयर वैल्यू उसकी 30 करोड़ 12 लाख थी. इससे ओवर स्टेटमेंट कितना हुआ? इससे इनकी जो प्रॉफिट्स है एंड इक्विटी है 26.98 करोड़ से ओवरस्टेटेड हो रहे थे. एंड सेकंड इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 26.98 करोड़ से ओवरस्टेटेड थे. एक है इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के केस के अंदर उनके अनपेड ग्रेचुइटी थी. कंपनी हैज नॉट पेड आउटस्टैंडिंग ग्रेचुइटी ऑफ 2 करोड़ 49,32,580 on retirement of their employment. Is a non compliance of gratuity act. एंड उन्होंने कोई भी ग्रेचुइटी से रिलेटेड प्रोविजन नहीं बना रखा था. तो इससे प्रोविजन का भी नॉन कंप्लायंस है. बट अमाउंट नॉट सर्टेन था. अमाउंट इज नॉट सर्टेन. ड्यू टू दिस दे हैव टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन लायबिलिटी इन देयर नॉट सो अकाउंट्स. सेम एज नोट बिल्डर. इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में 1 करोड़ का क्लेम करती है टेनेंट कंपनी पे. जो पेंडिंग केस चल रहा था एडवर्टाइजमेंट on 31st March 2022, but at the end of the year जो केस था वो सॉल्व नहीं हुआ. तो अब उनकी लायबिलिटी तो सर्टेन नहीं थी. तो बट उन लोगों ने प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था. कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट, इसमें क्या था 5.94 करोड़ रिसीवर्स खरीदे स्टैंड इन सब्सिडी कंपनी को 5.94 करोड़ के स्टैंडिंग खरीदे रिसीवर्स. बट जो सब्सिडी का ऑर्डर था उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखा था कि गोइंग कंसर्न पे कि है ना उसकी कंटिन्यू करने में रिस्क है. और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था सब्सिडी के अंदर वो था 0.035 करोड़ का. तो टोटल 5.97 करोड़ के रिस्क है. तो उनको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, बट उन लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था. एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर एक 1500 करोड़ का रिसीवर खड़ा था. इसके अगेंस्ट बोइंग 737 मैक्स के लिए फॉर रेंट एंड मेंटेनेंस. बट उसका सर्टेनिटी नहीं थी कि वो इनकम रिसीव होगी नहीं होगी. तो अराउंड 30 इवन उनकी सर्टेनिटी नहीं थी 30 सितंबर 2021 तक, जब तक ऑडिट फाइनलाइज हुई. बट कंपनी की जो मैनेजमेंट थी उसने उसको अदर इनकम में रिकॉग्नाइज कर रखा था, जिससे उनकी अदर इनकम ओवरस्टेटेड हो रही थी. अब थर्ड केस था जिसके बेसिस पे ऑडिटर्स ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया. वो है एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान. अब एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान के अंदर 4 टाइप के होते हैं मेजरली. एक तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्लान, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान एंड टर्मिनेशन बेनिफिट प्लान. शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्लान 12 मंथ्स में जो पे हो जाते हैं जैसे वेजेस, सैलरी. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान जो एम्प्लॉयमेंट के बाद भी पे होते हैं जैसे ग्रेचुइटी. और लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान जो 12 मंथ से ज्यादा बेनिफिशियल होता है. टर्मिनेशन बेनिफिट प्लान जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देती है जॉब छोड़ने के लिए.
पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है उसकी कोई रिस्क नहीं होती, ओवर टोटल रिस्क गवर्नमेंट की होती है, इसमें उसको एक्चुअल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और पीएफआई से इसके एग्जांपल्स है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर टोटल रिस्पांसिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है, उसको एक्चुअल रिपोर्ट लेना पड़ता है और उसको मैनेज करना पड़ता है कि कितना अमाउंट पे करना है, कितना पे नहीं करना, लाइक ग्रेचुइटी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्चुअल रिपोर्ट are crucial for accurately determine the present value of future obligation related to post-employment benefit, especially for determining the defined benefit plan. Compliance with accounting standard. Indian accounting standard requires the compliance to recognize the provision for the post-employment benefit and actual report, providing the necessary data for this recognition. Fine. Failure to obtain the actual report and recognize the liability correctly can lead to misstatement in the financial statement, which represent the company's financial position. Actual accounting for the post employment benefit. अब actual valuation basically सबसे पहले requirement क्या है, actual valuation post employment benefit को recognize करने के लिए। अब उसके लिए provision recognize होता है उसके अंदर और periodically year by year का review करना पड़ता है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। अब वासु जो है स्मार्ट बॉस है, इसका ऑपरेटिंग का, उसके मानना था कि आई डोंट नीड नो फैंसी रिपोर्ट, आई कैन एस्टिमेट इट माय सुपर पावर्स। अब ऑडिटर एट एंड ईयर के एंड में आता है और बुक्स रिव्यू करता है। बुक्स रिव्यू करने के बाद आइडेंटिफाई करता है कि इसने तो प्रोविजन नहीं बना रखा, नेगोशिएशन रिपोर्ट ले ली थी, बिकॉज़ वो तो जानता है कि मैं सुपर पावर्स से रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो ऑडिटर कहता है it's like trying to calculate the company salary expenses by looking at your employee's face. Vasu reply करता है, but I thought I could just guess the amount based on my morning coffee. Auditor say guessing doesn't work with the financial statement, and at the end Vasu required to take actual report for the gratuity valuation. अब 92 केसेस के अंदर प्रोविजन और एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करती कंपनीज। अब कौन-कौन से इंडस्ट्रीज के अंदर किस सेक्टर के अंदर कंपनीज ने ऑडिटर्स को ग्रेचुइटी रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, जिसके कारण ऑडिटर ने उनको क्वालिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड किया। जैसे कि ऑटो कंपनी इक्विपमेंट, कमोडिटी कमर्शियल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड एटीसी। अब कई सेक्टर्स की कंपनीज तो इवन ग्रेचुइटी की रिक्वायरमेंट नहीं करती प्रोविजन के अंदर। प्रोविजन लाइक वो जब उसकी लायबिलिटी आती है वो पीएनएल रिकॉग्नाइज करके उसको सेटल कर देती है। लाइक जैसे कंपनीज है सीमेंट प्रोडक्ट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग। अब सो बेसिकली अभी तक इन्होंने जो मैं समझ पाया हूं, yes talked about two of the accounting standards. कौन से? It is 37 है, it is 19। एक प्रोविजंस की बात करता है और दूसरा एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोविजंस, एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंस की बात करता है। तो जो इन्होंने बात करी, जब भी जहाँ पे प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, इंडेक्स 37 की बात कर रहे हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि साहब एक तो प्रोविजंस का रिकॉग्निशन है ना, और उसका एस्टीमेट दैट इज नॉट प्रॉपर, और उसकी वजह से there are modified opinions. Somehow they have not included that what kind of language has been used in the modified opinions. बाद में है कहीं? अच्छा वो नहीं है। So you should also go through that language also कि यार ये लिखा कैसे है? That is again very important. और हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं क्या? जब आप वो 400 पेज का एनालिसिस भी देखोगे तो then they have written all the facts, they have written how it has been overstated, how it has not been overstated, yeah, understated, and a profit overstated, assets overstated, whatever. So वो भी वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से, और ये सारे लिस्टेड कंपनीज का पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल डाटा है। इन्होंने शायद कंपनीज के नाम नहीं लिखे, बाकी सारी एज इट इज ऑब्जर्वेशंस उस एनालिसिस में लिख दी है। So the point is आपको एक आइडिया मिलेगा that how we can actually draft the modified opinion or draft the report also। क्योंकि और फिर उसके बाद में जब जैसे मान लो आपके पास फैक्ट्स आ गए,
तो आप एआई का यूज करके भी उसको प्रॉपर तरीके से कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं सो दैट इट इज इन कंप्लायंस विद द एसए 705। तो और ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी सिचुएशंस आपके एग्जाम्स में भी आ सकती है, ठीक है। आपके उस जो आईबीएस वाला है उसमें ये मोबाइल फोन पे थोड़ी ना अलाउ करते हैं, नहीं तो चैट जीपीटी के साथ मिलेगा आगे से शायद वो है। एनीवेज, एक इन्होंने बताया कॉन्टिजेंट एसेट्स। तो कई जगह आप देखोगे कि कॉन्टिजेंट एसेट्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं कर रहे, या हो सकता है वो कॉन्टिजेंट एसेट नहीं होंगे और एसेट इटसेल्फ है फिर भी उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये अच्छा, ये जब तक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज नहीं है, इज इट पॉसिबल टू ड्राफ्ट द opinion? No, so because you will not be able to conclude on a particular scenario. आप क्लाइंट जो कह देगा वो लिख दिया, हाँ इस तरह। तो बेसिकली देन यू नीड टू रेफर इट टू थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद भी आपका जब भी आप कोई क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो या मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, your communication to those charged with governance is also important. आप डायरेक्ट ओपिनियन अपनी नहीं दे सकते हो बिना क्लाइंट को इन्फॉर्म करे। तो क्लाइंट को प्रैक्टिकली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। दूसरा इन्होंने बताया अबाउट दी एक्चुरियल gains or losses, sorry, employee benefit. So how many companies have not even taken the employee benefit, this actuarial valuation report? कितनी कंपनीज बताई आपने? 7-8 सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज ने रिपोर्ट रिपोर्ट ही नहीं ली। अब आप देखिए कि अगर वो रिपोर्ट ही नहीं ली, एंड वो एक इन्होंने एक वासु का एग्जांपल दिया कि साहब मेरे पास तो सुपर पावर है कि कितना मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कितना मेरा आगे जाके खर्चा होगा। तो दैट काइंड ऑफ सुपर पावर नोवेयर एग्जिस्ट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो कहते हैं साहब बेसिस बना के दीजिए। सो देन अगेन अभी यहाँ तो केवल इन्होंने रिपोर्ट की ही बात करी है। As an auditor, we need to also ensure कि उस रिपोर्ट के अंदर प्रेजम्पशंस जो ली है वो भी ठीक ली है नहीं ली है। ऐसा तो नहीं कि प्रेजम्पशंस हर बार की तरह जो पिछली बार ले ली वो इस बार ही ले ली, या they are not supported by the actual data, actual past record which is available with the company, या फ्यूचर में कोई चीज को डिस्काउंट ही नहीं किया और कोई ऐसी चीज ले ली। क्योंकि बहुत सारी प्रेजम्पशंस लेते हैं, जैसे एस्केलेशन की प्रेजम्पशंस लेते हैं कि सैलरी में कितना एस्केलेशन होगा, इंटरेस्ट रेट की, एम्प्लॉय की एज का प्रेजम्पशन लेते हैं कि कितने साल तक ये लोग रहेंगे, है ना, कितने लोग कितने लोग पहले ही छोड़ के जा सकते हैं। तो ये सारी प्रेजम्पशंस लेनी होती है by the companies before companies and in turn basically by the actuarial valuer. तो इन सब presumptions का भी हमें कंपैरिजन भी करना चाहिए पिछले साल से, और वो presumptions भी ठीक है या नहीं ये भी हमें देखना चाहिए। And sometimes we as an auditor we may disagree by that actuarial valuer report अगर उसके अंदर कोई प्रेजम्पशन गलत ले रखी है। तो दो तरीके की ऑब्जर्वेशंस इन्होंने मिली, एक तो एक्चुअल वैल्यूअर की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, या एक्चुअल वैल्यूअर की रिपोर्ट ही नहीं ली, तो इट इज अगेन अ बिग ब्लंडर। और या रिपोर्ट एक एस्टिमेट के बेसिस पे निकाल लिया या फिर उसका प्रोविजन ही नहीं किया, तो दैट कैन आल्सो बी अ रीजन फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। अभी ऐसे 505 पे आएंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब
Definition of actional confirmation. Actional confirmation provided direct written response from the third party to the auditor, verifying the financial data. It enhances the reliability and objectivity of the audit evidence. अब reliable factors कौन कौन से हो सकते हैं? अगर कोई एविडेंस इंडिपेंडेंटली ऑडिटर खुद मांगता है, मतलब थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके ऑडिटर लेके आता है, तो वो मोर रिलायबल है. एंड डायरेक्ट एविडेंस बीच में अगर थर्ड पार्टी अपने को मिल करके मैनेजमेंट को ना मिल करके, तो वो जो एविडेंस है वो मोर रिलायबल होगा. थर्ड, अगर कोई एविडेंस अपने को रिटर्न में मिलता है, लाइक मेल पे मिलता है इंस्टेड ऑफ ओरल, तो वो मोर रिलायबल है, क्योंकि फ्यूचर में अपन उसको चैलेंज कर सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ एक्शनल कंफर्मेशन. एक्शनल कंफर्मेशन टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड नेगेटिव कंफर्मेशन. पॉजिटिव कंफर्मेशन तब लिया जाता है जब डेटा हिट्रोजीनियस इन नेचर होता है, मटेरियल होता है एंड यूनिक होता है. और नेगेटिव कंफर्मेशन तब लिया जाता है जब डेटा कॉमन होता है, स्मॉल होता है और मटेरियल नहीं होता. अब अगर मैनेजमेंट अपने को एक्शनल कंफर्मेशन लेने से मना करे तो क्या करे? उस टाइम पे इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से और get the reasons for denying the actionable confirmation. Evaluate the risk, assess the impact on the risk of material misstatement, including fraud. Alternative audit procedure. Perform the alternative audit procedure to obtain the reliable evidence and evaluate the risk related to 705. अब addressing the non-response. Basically सबसे ज्यादा important तब होता है जब अपन पॉजिटिव कंफर्मेशन लेते हैं, तो नॉन रिस्पॉन्स ऑडिट एविडेंस को ना लेने
So we have to be, you know, we have to know कि ये पूरा जो स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एसिस 505, ये केवल बैलेंस कंफर्मेशन की बात नहीं करता, ये बाकी सारी चीजों के ऊपर भी बात करता है। और अब ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन सारी नहीं आई है ना, किन किन मीडिया में, किन किन सॉरी टाइप की कंपनीज में किस तरीके की ऑब्जर्वेशंस आई, दैट दे विल टेल यू। एक्चुअल कंफर्मेशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर एरिया कौन-कौन सेक्टर्स के अंदर नहीं है वो, जैसे कि सिविल कंस्ट्रक्शंस, ई रिटेल्स, फिल्म प्रोडक्शन, जेम्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंटरनेशनल कंपनीज, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जनरल इंश्योरेंस, इन सब सेक्टर्स के अंदर एक्चुअल कंफर्मेशन ऑडिटर को नहीं मिली, इसका कारण उसने क्वालिफाइड ओपिनियन प्रोवाइड किया था। अब एक सेक्टर लेते हैं जिसमें एल्यूमिनियम सेक्टर था, जिसके अंदर 70.99 करोड़ का ट्रेड रिसीवर्स स्टैंडिंग खड़े थे, but the age of these receivables and company's current financial state raise a concern about the recoverability. Not a confirmation has been received from the debtor, making it impossible to verify the validity and existence of the receivable. The lack of confirmation further hinders assessment of true and fair view of the financial statement. As अमाउंट का वैल्यू काफी बड़ा है, 70.9 करोड़ का वैल्यू है, इस कारण ये मटेरियल अमाउंट है और इस कारण ऑडिटर ने इस पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। तो बेसिकली जहां कहीं पे भी आपका ये इश्यू आता है कि सब एक मिनट, जैसे इस केस के अंदर बहुत सारे पुराने बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग थे ट्रेड रिसीवेबल्स, तो आपको हमेशा जब भी ऑडिट करें तो एक एजिंग देख के, और आपको यू शुड ऑलवेज ट्राई टू असेस यार ये एजिंग के अंदर पुराने डेटर्स रिकवरेबल आ रहे हैं, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, तो आर दोस रिकवरेबल्स आर रियली रिकवरेबल? कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट का ऑलरेडी सेटल हो गया है या सामने वाला कुछ डिस्प्यूट कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन में दोगे, सामने वाले से बैलेंस कंफर्म करोगे तो पता चला कि उसके यहाँ से आ रहा है कि साहब ये तो मेरे को पेएबल ही नहीं है और ये आपने बुक्स में दिखा रखा है, या वी हैव ऑलरेडी सेटल्ड इट। कई बार ये हो जाता है कि पता चला कि उस क्योंकि कई सिस्टर कंसर्न्स होती है आपस में, तो पता चला कि पेमेंट किसी और कंसर्न में कर दिया और यहाँ पे खड़ा ही है, एंड दे आर अज्यूमिंग कि साहब ये तो पेमेंट हो गया। सो as a professional, as an auditor, you should always have a questioning mind in with you कि भाई ये पैसा क्यों खड़ा है, and then आपका जो external confirmation process है वो थोड़ा extend आपको कर देना चाहिए, wide आपको कर देना चाहिए, ताकि जितने भी पुराने डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, इनमें भी क्रेडिटर्स also, तो वो बैलेंस शीट के अंदर your focus must be more on those which are outstanding for more than 1 year or 2 years. उसकी जगह जो outstanding पुराने 6 महीने पुराने हैं और आपका ऑडिट करते हुए सपोज 2-3 महीने हो गए, तो आप ये देख लो कि यार ये तो आगे ही रिकवर हो गए, तो ठीक है, you can based on your judgment आपको सैंपल बेसिस पे उनका एक्सटर्नल कंफर्मेशन डालिए, या फिर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन की वो बात करते हैं कि साहब कहीं से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्टली क्वालिफाई कर दो कि साहब दे आर नॉट कंफर्म। यू कैन नॉट, यू नीड टू देन हैव द अल्टरनेट प्रोसीजर आल्सो, कि वो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है नहीं आई है, तो अल्टरनेट प्रोसीजर क्या है, आप आगे के पीरियड में जाके चेक करो कि पैसा आया या नहीं आया, तो दैट इज वन थिंग। कई सारे क्लाइंट्स अपनी बुक्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिख देते हैं कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। ये लाइन तो कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए। आपने देखी किसी ने इस तरीके की लाइन अपने किसी कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं देखी ना, बट बहुत सारी बैलेंस शीट में जब हम रिव्यू करते हैं दूसरे लोगों की, तो हम देखते हैं कि इस तरीके की लाइन लिखी हुई है कि बैलेंस एंड debtors and creditors are subject to confirmation, inventory is certified by the management, तो फिर ऑडिटर नहीं करेंगे। जब subject to confirmation है
दैट मींस एक कंपनी की बैलेंस शीट में ये कितना बड़ा अमाउंट होता है रिसीवेबल्स और पेएबल का, और वो हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है। तो दैट मींस आपका ऑडिट इटसेल्फ ही डिस्क्लेमर है एक तरीके, तो वो तो नीचे तो डिस्क्लेमर दे रहा है और आप उसको क्या कह रहे हो, इट इज ए ट्रू एंड फेयर व्यू अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सो एब्सोल्युटली रॉन्ग कि नोट्स में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन और आप कह रहे हो कि साहब इट इज एन unmodified opinion and it is a true and fair view. So this contradiction should not be there. सेकंड केस है ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट के अंदर। अब कंपनी के पास में करंट अकाउंट में 4 करोड़ के बैलेंस खड़े थे, बट ऑडिटर जो था उसको 25.46 लाख का बैंक से कंफर्मेशन नहीं मिला, एंड अदर बैलेंसेस जो थे जिसमें 50.66 लाख के कंफर्मेशन नहीं मिले। तो ये भी एक बैंक कंफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो चाहिए होती है, बट वो ऑडिटर को नहीं मिली। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ड्यूज। Outstanding dues to government required confirmation, potential adjustment, uncertain impact. The lack of confirmation makes it impossible to determine the exact impact on interest and penalties. Interest and penalties के बारे में confirmation ना मिलने के कारण auditor judgment नहीं कर पा रहा। And last case है TV and broadcasting, intercompany transaction. Outstanding balances between related companies required confirmation and reconciliation. The absence of reconciliation makes it impossible to assess the potential impact on financial statement. Unreconciliation intercompany balances could significantly affect the company's consolidated financial statement. Auditor have to investigate the balances. Thank you. Good evening, everyone. So, in the beginning of the presentation, a pie chart was shown here that showed the major reasons for modification in our analysis. So, one of the major reasons was SA 570, that is going concern. So, let's first have an overview of that, then we will see the example. So, this deals with the auditor's responsibility in the audit of financial statements relating to going concern and implications for the auditor's report. Now, what does the going concern basis of accounting say? So, under the going concern basis of accounting, financial statements are prepared on the assumption that entities are going concern and will continue its operation in the foreseeable future. जितना आगे तक देख सकते हैं उतना हमारे को लग रहा है कि अभी एंटिटी कंटिन्यू करेगी, तो हम उस बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. So when going concern basis of accounting is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that entity will be able to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. तो जो भी हमारी assets या liabilities हैं, वो हम normal course of business में अपने realize करेंगे या pay off करना है. Now broadly there are two types of financial statements. First is general purpose financial statements and other is special purpose financial statements. जो general purpose financial statements होते हैं वो हम going concern basis पे बनाते हैं general case में. पर अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि हम बिजनेस को लिक्विडेट करने वाले हैं या फिर कोई ऑपरेशन बंद करने वाले हैं, तो उस केसेस में हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करते. पर जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम नॉर्मली हो सकता है हम बनाएं गोइंग कंसर्न पे या ना बनाएं. जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्स बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं होते, क्योंकि टैक्स पर्पस पे बनते हैं तो हमारे को टैक्स पे करना होता है. प्रेजेंटेशन ग्रुप पे भी शेयर करना. Now, what are the objectives of the auditor under this essay? So, firstly, he will obtain the sufficient and appropriate audit evidences that the management has appropriately used the going concern assumption, and he will also conclude on those audit evidences that there is no material uncertainty exists, or if that exists, then we will see the implications on the auditor report. And lastly, he will conclude according to this essay. पर अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ऑडिटर को लगता है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन भी करेक्ट है और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है, तो वो अपनी रिपोर्ट में कुछ भी उसका डिस्क्लोजर नहीं देगा, तो उस केस में हम ये अज्यूम नहीं कर सकते या फिर गारंटी नहीं है ऑडिटर की तरफ से कि फाइनेंशियल जो भी एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न रहेगी फ्यूचर में. हो सकता है कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो उस वजह से एंटिटी को लिक्विडेट करना. Now broadly there are two categories of indicators that show whether an entity is a going concern or not. So that is financial and operating, and some others also. So financial indicators include net liability, or we can say negative net worth.
अगर पूरी नेगेटिव नेटवर्क की आगे कंपनी केस में, तो वो फिर लिक्विडेट जल्दी हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। फिर है फिक्स टर्म बोरोइंग्स अप्रोचिंग मैच्योरिटी, पर उसके लिए हमारे पास ना तो कोई रिपेमेंट का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, या फिर हम उसको रिव्यू भी नहीं कर पा रहे। या फिर एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म असेट्स, हमने जो भी करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी और हमारी जो करंट असेट्स हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए वो काफी कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो लॉन्ग टर्म असेट्स फाइनेंस लिए वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से है। फिर है नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या फिर एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, दैट इज अगर आपका मान लीजिए करंट रेशियोज बिलो 1 है, तो उस केस में आपकी बहुत ज्यादा करंट लायबिलिटी है। फिर सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस और सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या फिर अरियर्स और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट्स, आप अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक इंडिकेटर है कि आप गोइंग कंसर्न असम्पशन आप ना यूज करें। फिर लास्ट है चेंजेस फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस, मान लीजिए पहले आपको क्रेडिटर्स क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई कर रहे थे, पर एकदम से उन्होंने चेंज कर दिए अपने टर्म्स कि आप कैश बेसिस पे ही सारी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो वो एक इंडिकेशन। नेक्स्ट इंडिकेटर इज ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, मैनेजमेंट ने इंटेंशन बना दिया कि हम लिक्विडेट करने वाले हैं एंटिटी को, तो ये एक इंडिकेशन है गोइंग कंसर्न असम्पशन यूज नहीं करने। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, मान लीजिए आप एक सीएफओ या सीईओ सब रिजाइन कर रहे हो और आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उस केस में। या फिर लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट या की कस्टमर्स, फ्रेंचाइज, लाइसेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लायर्स, लेबर डिफिकल्टीज या शॉर्टेजेस ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लायर्स, जो आपका कोर रॉ मटेरियल है वही आपकी शॉर्टेज होगी उसकी, तो फिर आप बिजनेस कैसे कंटिन्यू करेंगे। फिर अदर इंडिकेटर्स इंक्लूड नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपने एनबीएफसी केस में देखा होगा कि हमें कुछ मिनिमम नेट ओन फंड मेंटेन करना पड़ता है, या फिर एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आप एनबीएफसी को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो उस केस में कैसे वो कंटिन्यू कर पाएंगे। क्या वरने आपको कहना है? अरे सपोर्ट कर सकती है, वो हमें याद आ रहा है आप थोड़ा बताओ। तो कोई बता सकता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होता है? वरने 1:20 थोड़ा सा नहीं मैंने नेट ओन फंड रेशियो बताया है। वरने को माइक दे दो। क्यों? हाँ आगे आ जाओ। अरे तू उसको बता रही हो, उनको भी बता कि how you are relating it with the what you read. उनका कुछ फायदा होगा, तेरे फायदे की बात नहीं करो, तू तो एग्जाम दे चुकी है। ये नहीं लर्न किए थे सारे पॉइंट्स। 15% होता है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अच्छा ये इसके प्रेजेंटेशन में मैंने एक बहुत अच्छी बात ये देखी है कि इसने जो भी ओपिनियंस मॉडिफाइड रही होगी इन दैट 400 पेज मटेरियल एनालिसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, तो वहां मुझे नहीं लगता इस तरीके से समरी दी हुई है क्या? वो तो पूरे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, और अभी 400 पेज को यहाँ 2 घंटे में पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स ए ग्रेट टास्क। तो यहाँ इन्होंने श्रवण अग्रवाल, श्रवण ने जिस तरीके से इसको किया, किस किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं और ऐसे 570 में रिपोर्टिंग है, वो ऑलमोस्ट उसने उन ओपिनियन से या कहीं ना कहीं दूसरी जगह से लेकर के और ले लिया। बट केवल एक जो इन लोगों ने प्रेजेंटेशन में कमी रखी है, मैंने पहले भी बोला कि दे हैव नॉट टेकन द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रिपोर्टिंग, प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तुम ग्रुप पे शेयर करना कि प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग कैसे की हुई है, तूने दिया है। अब कोई पेंडिंग या लीगल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स है किसी एंटिटी के अगेंस्ट में, जैसे कि हम अडानी का केस हम सुन रहे हैं, तो उसमें अभी नया जजमेंट यूएस फेडरल कोर्ट ने दिया है कि अडानी पर प्ले वारंट इशू किया, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि गोइंग कंसर्न पे कुछ इफेक्ट आ सकता है। फिर चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई कि मान लीजिए कोई अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल परमानेंटली बैन कर दे, तो उस केस में वो गोइंग कंसर्न पॉसिबिलिटी कम है, पर हो सकता है। Uninsured or underinsured catastrophes when they occur. Now, what are the implications on the auditor's report on the basis of audit procedure? तो मान लीजिए ऑडिटर की जजमेंट है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन अप्रोप्रिएट है और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, पर वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर इशू करेगा और एक सेपरेट सेक्शन में वो बताएगा जो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न कि वो मैटर अनसर्टेनिटी क्या है,
और ऑडिटर की ओपिनियन उस बेसिस पे मॉडिफाई नहीं हुई। फिर अगर assumption करेक्ट है, अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है पर वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में या तो एक्सप्रेस करेगा वो ओपिनियन एडवर्स या क्वालिफाइड, डिपेंड्स अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस और द परवेसिवनेस ऑफ द मैटर। फिर लास्ट केस में अगर assumption ही इनअप्रोप्रिएट है तो उस केस में एडवर्स ओपिनियन इशू करेगा। Now few examples in which opinion has been modified considering SA 570. So in this pie chart, we can see that around 61% of modifications were due to net worth erosion and around 13% repayment default. So these cover the major modifications due to SA 570. Now the examples. Now this company belongs to an aluminium industry. Here the auditor has qualified his opinion, and in the basis of opinion para, he has mentioned that company incurred a net loss of 1.27 crore rupees, and which has resulted in accumulated losses of 6.22 crore rupees, and also erosion of net worth, which we saw in the indicators that there will be an erosion. Also, the fund-based borrowings aggregating to rupees 54.98 crores, and the creditors of the company are demanding their recovery, and they have filed an application in corporate insolvency and resolution process. NCLT वाली एप्लीकेशन भी फाइल हो चुकी है, और लास्ट में NCLT को लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी की ये एप्लीकेशन भी फाइल कर चुके हैं। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और अकॉर्डिंगली ऑडिटर ने क्वालिफाई कर लिया। So this basis for qualified opinion इन लोगों को मतलब जब अपन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो एक बार वापस आना। हाँ, जब स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड में सबसे ऊपर कौन सा पैराग्राफ आता है आजकल ऐसे 700 के हिसाब से? क्या ओपिनियन पैराग्राफ? सबसे पहले ओपिनियन आती है नहीं आती? तो वो ओपिनियन पैराग्राफ आपने देखा होगा, और 99% of you must have seen in our office any basis for qualified opinion paragraph. तो जब हम ओपिनियन पैराग्राफ देखते हैं तो वहां पे अगर क्वालिफाइड ओपिनियन होनी तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? उस ओपिनियन पैराग्राफ को ही ओपिनियन की जगह क्वालिफाइड ओपिनियन लिख देते हैं, और क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के और फिर उसमें ये लिखते हैं कि सर हमने इसको क्वालिफाई क्यों किया, उसका रीजनिंग बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दिया हुआ है, ये लिखते हैं ना। तो आपने थ्योरेटिकली उसको पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमें देखना है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन की और एडवर्स ओपिनियन के लिए, अगला पैराग्राफ इसका एडवर्स ओपिनियन का है, तो किस तरीके से लिखते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली ड्रॉ द ऑल फैक्ट्स। आप देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, सिंपल इन्होंने यहाँ इतना सा नहीं लिखा है कि साहब गोइंग कंसर्न जो है वो चैलेंज है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। दे हैव नरेटेड इट विद ऑल द फैक्ट्स कि साहब इसका इस साल का लॉस इतना है, इस साल के लॉस के बाद में अगर टोटल मिलाए लॉस तो टोटल इतना हो गया, कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं, इनको पेमेंट करने की जो है दरकार है, बट दे आर नॉट एबल टू मेक दिस दोस पेमेंट्स। ऑनलाइन वॉलंटरी या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस भी इस कंपनी के अंदर स्टार्ट हो गया है। So there are so many reasonings which are required to be given for drawing a basis for qualified opinion. तो ये जब हम ऑडिट करते हैं तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया, तब तक तो सब कुछ बड़ा आसान ऑडिट कंक्लूड हो जाता है। लेकिन जो ही हमें ये लगता है कि नहीं यार यहाँ तो प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको एक अलग प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑडिट पता चला कि आपने कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया ये सारी चीजें। आप जो ही क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हो तो ये सब चीजें फिर आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, आपको उनसे एविडेंस लेने पड़ेंगे, या अपनी ऑब्जर्वेशंस को विद एविडेंस उनसे शेयर करना पड़ेगा with those charged with governance. So, moment you are going for a qualified opinion paragraph, the process is lengthy. यहाँ आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, यहाँ आपका टेक्निकल नॉलेज
यहाँ आपकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच काम आती है और यहाँ ये ट्रेनिंग काम आती है, क्योंकि हम जब तक सब ठीक चल रहा है, आपको है ना, जो है आप जॉब पे लगे, ठीक चल रहा है, पैसे वैसे मिलने लग गए, कोई इशू नहीं है। चैलेंज कहाँ आता है कि आप ऐसे जॉब में चले गए जहां आपको लग रहा है कि अरे यार मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा, या कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया हो गया, या अचानक से जॉब चला गया, ये सब चीजें भी तो है। सो ये ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें बहुत जगह आपको सीखने की जरूरत है। हर चीज सीधी सीधी नहीं है, हर चीज सीधी सीधी होगी तो बड़ा आसान हो जाएगा ना काम। तो डू यू फील कि हर चीज एकदम सीधी सीधी है? नहीं है ना। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये इसी सब चीजों के लिए है। ये एग्जाम्स तो आप क्लियर कर लोगे, हाँ ये क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए 4 कंडीशंस हैं, एडवर्स के लिए ये है, इसके लिए ये है, बट हाउ वी, ये इसमें कितनी मेहनत है टू ड्रॉ द थिंग्स। चलो आपने चीजें निकाल करके और चैट जीपीटी से प्यारा बना लिया, वहां आज की डेट में हो सकता है मेहनत नहीं हो, लेकिन यहां तक फैक्ट्स निकालने के लिए कितनी मेहनत है, एंड दैट टू आर्ग्यूमेंट्स विद द काउंटर पार्ट। Are we, equipped enough to this? और ये मैं केवल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर जगह बात कर रहा हूँ, हर जगह काम में बात कर रहा हूँ। सो हमें वो इंटरपर्सनल स्किल्स आनी चाहिए। नेक्स्ट, एडवर्स ओपिनियन। The next example is for adverse opinion. Here the auditor has mentioned that company incurred a net loss of 252 crore rupees and its net worth has been fully eroded. And whatever the resolution plan that the company has planned, it is subject to terms and conditions, that is successful winning of challenge by the bidder or approval by the shareholders in the EGM, or fulfilling the conditions of investment agreement or debt restructuring cum settlement agreement. So all these indicate that the material uncertainty exists, and hence the auditor has expressed an adverse opinion. So here the main word is fully eroded. The net worth is fully eroded. That is pervasive in nature. In next example, the auditor has disclaimed his opinion and he has mentioned that net loss after tax of 172 crore rupees, accumulated losses of 979 crore rupees. Here the amount seems that it is a material amount and pervasive in nature, but it has only resulted in partial erosion of its net worth. Also, the current liabilities exceed current assets by 228 crore rupees. The lenders have filed an application with the NCLT for recovery of their dues. Also, the company has delayed in the repayment of its borrowings, and also borrowings from certain banks have been classified as NPAs, which means that the company is making defaults in the payment of their borrowings. So, lastly, the auditor has said that absence of sufficient and appropriate evidences, because of that, he is unable to comment on the entity's ability to continue as a going concern. So, conclusively, we can say that this is because of that he has disclaimed his opinion. So we have seen all the three kinds of opinions here: qualified, disclaimer, and adverse opinion. So it all depends whether the matter is pervasive or not, and ultimately what audit evidences the auditor has. लास्ट में सारे लोग एक बार खड़े हो जाओ। अरे लास्ट में का क्या मीनिंग था? तो थर्ड नंबर तो ग्रीन शर्ट में क्या नाम है तुम्हारा? हैं? ध्रुव गर्ग। क्या समझ में आया? क्या? What is disclaimer? इन्होंने क्या बताया? डिस्क्लेमर में कौन सा तरह पढ़ा? कितनी चीजें लिखी हुई थी? तुम इन्होंने क्या लिखा होता है ये बताओ। ऐसे बताया कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया, ऐसे 250 के बारे में। ऐसे 250 तो अभी आया भाई, डिस्क्लेमर ओपिनियन और ऐसे 250 जो लास्ट वर्ड है याद आया वो बोल दिया क्या यार, ऐसे 250 बोल रहा था, बोल देते
मेरा डिस्क्लेमर ओपिनियन है ही नहीं, आप पांचों के बारे में मेरा एडवर्स ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि साहब बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन थ्रू आउट दिस क्लास, आप पांचों क्लास में हो ही नहीं, सो इट इज एडवर्स ओपिनियन कि साहब ये लोग तो क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, फिजिकली अवेलेबल है ना, ये मैंने पूछ लिया तो पता चल गया, और मैं नहीं पूछता तो क्या होता, मैंने एविडेंस ही नहीं लिए, आई कैन नॉट एक्चुअली से आपको बातें करते तो देख रहा हूं, लेकिन मैंने एविडेंस ही नहीं लिए कि आप क्या कर रहे हो। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वेदर आपको इस क्लास की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। So that is disclaimer. That is giving no opinion. So disclaimer of opinion का पैराग्राफ आपने जब भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा तो उसकी शुरुआत की लैंग्वेज किसी ने पढ़ी क्या, क्या लिखा हुआ होता है वरनिया? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के पैराग्राफ में शुरू में क्या लिखा हुआ होता है? We were engaged to perform the audit as per standards of auditing, but we could not obtain sufficient audit. अरे बता भाई, अभी नहीं पढ़ के आइए सबको बताना जरूरी, थोड़े खड़े होके बता, इसका फोटो दोगे? We were engaged to perform the audit as per standards on auditing, but we could not obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the material statements were effective, pervasive, and material statements exist and are pervasive. So what they are saying is that we were engaged to perform the audit. We were engaged. हम कंक्लूड नहीं कर रहे कि हमने ऑडिट कर दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, नंबर 1, है ना, सो देयर इज ए मटेरियल स्टेटमेंट एंड दिस मटेरियल स्टेटमेंट इज मे बी परवेसिव। तो ये क्योंकि हम इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहे, सॉरी मटेरियल स्टेटमेंट यहाँ नहीं आ रहा है, जब डिस्क्लेमर है तो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट देयर इज ए मटेरियल स्टेटमेंट, वी आर कंक्लूड दैट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आए हैं और उसकी वजह से ये मैटर जो है वो परवेसिव है, हम असरटेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितना प्रॉफिट इसमें बढ़ेगा, कितना कम होगा, क्या होगा। सो वी वर जस्ट एंगेज, हमने पूरा ऑडिट नहीं किया है, तब जाके डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। तो आप देखिए जब हमें कोई रिपोर्ट को डिस्क्लेमर देना है तो कितनी ताकत रखनी पड़ती है क्या? अभी आपने एक रिजिग्नेशन देखा ना DHS में, आई थिंक वीडियो ने किसी ने रिकॉग्नाइज को किया, हरिभक्ति ने किसी ने रिजाइन किया, क्या लिखा उसमें कि साहब हमको ये जो इंफॉर्मेशन हम बार बार मांग रहे हैं वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन से बार बार मांग रहे हैं दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस। तो कितना एक टग ऑफ वार हुआ होगा बिटवीन दी ऑडिटर एंड दी मैनेजमेंट, तब जाके उन्होंने लिख के और अल्टीमेटली रिजाइन किया कि साहब आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑडिट। और अगर ऐसा केस चलता रहता और क्योंकि सेबी रेगुलेशंस में ये लिखा हुआ है कि साहब आपको रिपोर्ट तो देना जरूरी है और फिर भी नहीं आता, तो उनको क्या करना पड़ता, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ता। साहब ये इन्होंने इंफॉर्मेशन ही हमें प्रॉपर नहीं दी, सारी चीजें आ ही नहीं रही है, तो हाउ वी कैन एक्चुअली ओपाइन ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। क्या वहां पीछे मंडली बनाने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू बी अटेंटिव, यही तो मैं बात कर रहा हूं। देखो अपना कोर्स जो है डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स है, नहीं है हमारा, इस कोर्स में कोई माय बाप नहीं है,
है क्या? वरेण्या, खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज लर्निंग ही नहीं है इस कोर्स। ये बेनिफिट भी है और ये डिसएडवांटेज भी है। Still we try to have something standardized in our form कि आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में नई नई चीजें देख करके और सीखो। तो वो जोश तो मुझे दिखा नहीं वापस। It's not about passing our time from 10:30 to 5 o'clock. We are not into that zone कि हम आकर के और यहाँ टाइम पास करेंगे। So anyway, next क्या है तुम्हारा? ऐसे 250 क्या है? ऐसे 250 अभी खड़े रहोगे? So the next major reason for modification in the audit report was SA 250, consideration of laws and regulations in an audit of financial statements. So what is the auditor's responsibility in relation to compliance with laws and regulations? So auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements, and by doing so, he takes into account the legal and regulatory framework applicable to that entity. But हमें पता है कि कुछ inherent limitations होती हैं ऑडिट की, तो उससे एक हमेशा अनअवॉइडेबल रिस्क रहता है कि कुछ मिक्स्ड स्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड रह जाएं। Now, what are the considerations auditor has to take to check the compliance with laws and regulations? So, firstly, he will obtain a general understanding of legal and regulatory framework and how the entity is complying with it. Next is obtaining sufficient and appropriate evidences to check the compliance with laws and regulations that have a direct effect on the financial statements. और जो laws and regulations जिनका direct effect financial statements में नहीं आता, जैसे Child Protection Act या फिर Environmental Act, तो उस केसेस में वो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि उन्होंने कंप्लाई किया है या नहीं की, और इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस इफ एनी विद रेलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो मेंटेन करना होता है पूरी ऑडिट में। फिर लास्टली और एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा वो मैनेजमेंट से कि ऑल द नोन नॉन कंप्लायंसेस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर। Now, how to report non-compliance in an audit report? In the auditor's report. So, if the auditor concludes that non-compliance has a material effect on financial statements and is not adequately reflected in the financial statements, he will express a qualified or adverse opinion based on SS 705. And if the auditor does not have sufficient and appropriate evidences and the matter is material, then he will express a qualified or disclaim his opinion as per SS 705. Now, यहाँ पे भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि नॉन कंप्लायंस हुआ है या नहीं, जैसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो अडानी का केस पहले डिस्कस किया था वो वाला। फिर पेमेंट ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज, कोई एडिशनल पेनल्टीज आप पे लग रही है या फाइन्स देने पड़ रहे हैं आपको, या पेमेंट्स फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन्स टू कंसल्टेंट्स। कोई कंसल्टेंट को आपने एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो, जो कंपैरेटिव अपन बनाते हैं उसमें आपको लग रहा है कि कुछ एडिशनल फीस पेमेंट कर रहे हैं अपन, तो वो एक इंडिकेटर हो सकता है। फिर unusual payments in cash or unusual payments towards legal or retainership fees, or last है adverse media comment. Few examples in which opinion was modified considering SA 250. So इस ग्राफ में हम देख सकते हैं अराउंड 60 कंपनीज में मॉडिफिकेशन होगा कंपनीज एक्ट की नॉन कंप्लायंस की वजह से। Now, this is an example of a company that belongs to auto component or equipment industry. So here, the company was having a total unclaimed mature fixed deposits of rupees 3.95 lakhs. और उस कंपनी ने कोई फंड नहीं बनाया था उस mature deposits को रीपेमेंट के लिए, तो वो एक सेक्शन 74 का नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 74 सेक्शन कहता है कि if any deposits are accepted before commencement of this act, then the company shall pay those deposits within 3 years from the commencement or before the expiry for the period for which deposits were accepted, whichever is earlier. तो यहाँ पे एक नॉन कंप्लायंस तो सेक्शन 74 का था, नेक्स्ट नॉन कंप्लायंस था सेक्शन 125 का, जो कहता है कि अगर आपका अनक्लेम्ड और अनपेड मैच्योरिटी डिपॉजिट्स आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर नहीं करते तो विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years,
तो वो एक नॉन कंप्लायंस सेक्शन 125 है, तो उस वजह से क्वालिफाइड होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ क्वालिफाइड opinion because of non-provisioning of CSR expenditure, which resulted in overstatement of reserves and surplus by rupees 16.25 lakhs. तो कुछ threshold limits होती है तब CSR expenditure करना पड़ता है। Next example is for non-reversal of GST input of rupees around 14 crore, which resulted in qualified opinion. तो 180 days में अपन को suppliers को payment करना पड़ता है invoice date से, तो अगर नहीं करते तो अपन को input का reversal करना पड़ता है, तो उसकी non compliance का example. Now the next reason for modification was India's 36 impairment of assets. तो इस India's का objective है कि जो भी assets अपनी books में record हो रखी है, तो उसकी carrying amount उसकी recoverable amount से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ procedures बताते हैं। इसके भी कुछ indicators हैं, जैसे कि external sources, significant decline in the market value or change in technological, market, economic or legal environment, increase in interest rates or rates of return. तो हमारे को कुछ value in use निकालने के लिए discounting करनी पड़ती है, इसलिए interest rates का use होता है। तो अगर वो ज़्यादा होंगी तो हमारी value in use reduce हो जाएगी। Lower market capitalization than equity value. Now internal sources, evidences of obsolescence or physical damage, asset performance declining or expected to decline. Now, what are the steps in impairment testing? So, an assessment has to be carried out at the end of each reporting period, whether any indicators are present or not. If such indicators exist, estimate the recoverable amount of assets. An asset will be impaired if carrying amount is more than their recoverable amount. But in these three assets, impairment has to be done whether or not indicators are present or not. That is, goodwill, intangible assets not yet available for use, or intangible assets with indefinite useful life. Now, few examples of India's 36, because of which opinion was modified. Major reason was impairment testing not carried out 60%, and auditor was unable to comment on whether the impairment testing was appropriate or not. So here the example is belongs to our other textile products, and auditor expressed a qualified opinion. The company was having a cash generating unit, and the company performed impairment assessment test, but the company was undergoing financial difficulties and significant uncertainty was there because the company's plan to monetize its assets were uncertain. So the auditor was unable to comment on the appropriateness of the assumptions used in impairment testing. So he qualified his opinion. Next example is also for a qualified opinion in case of breweries or distilleries industry. Here the impairment test assessment was not carried out for one of its fixed assets. Also, NCLT is ordered for liquidation of one of its wholly owned subsidiary, and the holding company did not make any provision for impairment of such equity investment. Also, one of its subsidiary has incurred a net loss because of it. Its net worth has negative net worth, and here also the company did not make an impairment provision. Now the last example belongs also for a qualified opinion. Here, fixed assets of the sugar mill division were not actively used for active service for more than 3 years, and technical evaluation of the assets needs to be done for impairment assessment. And since the technical evaluation was pending, impairment of assets could not be ascertained. So here also he has expressed a qualified opinion. So that is all from my side. Now Madhav will take over. ये इधर राइट में जो टोकन है और एक बार पूर्व को बोलना मैंने बात करेगा. So now we'll be covering India's 109. It was covering around 14% of the qualified opinions. So India's 49 financial instruments. If we go to the definition of meaning of the financial instrument is a contract that gives rise to financial asset in one entity and correspondingly financial liability and equity in another entity. Now we look at what is financial asset. Well, financial asset is a cash equity instrument of another entity, a contractual right to receive cash or another financial asset from another entity and to exchange financial asset under potentially favorable conditions. It also includes own equity instruments.
a non-derivative for which entities may oblige to receive a variable number of entities' own equity instruments, or a derivative that will be settled other than a fixed number of entities' own equity instruments. So if we talk about the example of contractual right to receive cash, then trade receivables, bill receivables, investment in debentures of another entity, these all are parts of the contractual right to receive cash. And own equity instruments is like a non-derivative where if we make a contract, we will receive a variable number of instruments in future. It may be depending on something that we are not fixed the amount. Now, financial liabilities, contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity, or to exchange financial asset or liabilities under potential unfavorable conditions. These are the setting point is about the derivatives. It may be favorable or unfavorable depending on their market rate. When they are favorable, they become financial assets, and alternatively, when its conditions are unfavorable, they become a liability. Now, own equity instruments, financial liabilities can also arise from contract settled in the entity's own equity instruments. It's the same way as own equity instruments used in financial assets. In this situation, we might get the obligations to deliver our own equity instruments to another entity. Now, few of the examples where they are financial assets or not. A prepaid expense. Prepaid expense is not a financial asset, as the contractual obligation is to receive services and not cash. So here the catch is that only assets that are readily convertible into cash, those are covered into financial. Construction obligations, but construction obligations is not a financial liability, whereas there is contractual obligation to deliver cash. There is no contractual obligation to deliver cash. Income tax payable. Income tax payable is also not a financial liability. It's a statutory obligation by the government that due to which we have to pay the income tax. Trade receivable, well, it's a financial asset. Contracts to be settled in own equity instruments which are fixed. Any contract in which we have to pay through our own instruments, and we know the amount and the number of equity to be paid, then they become equity only. Now let's see the classifications. Financial assets can be classified into three ways: amortized cost, FVTOCI, and FVTPNL. Well, what is this? It's all a classification with how to account them, how to account the financial assets. Amortized cost includes financial assets that pass CCFC test, and business model of them is we have to hold it till the maturity. FVTOCI are the financial assets that pass CCFC test, and all the business model is not to hold to maturity, but just to sell it and also to receive the contractual cash flows. Remaining all the financial assets are shown by purely through profit and loss. Now we understand the CCFC test. What is this? Then it's a contractual cash flow characteristic of the instrument, in which the basic lending arrangement is around the compensation of inflation, credit risk, and reasonable profit margin. Any other instrument which does not confine to this basic lending arrangement does not satisfy the CCFC test. Now the business model is just how the contractual cash flows are managed. Is my intention to collect the cash? My intention to use the instrument is to collect the cash flow till the maturity, or is it to sell it in before the maturity and gain by the market value differences? Now, if we understand the classification more clearly from this chart, then any contractual right to receive cash, if its contractual cash flow characteristic is it's pass or not. Well, whether the contractual cash flows are covering the principal and interest amount or not, if it's only the principal and interest amount, and if the business model is to hold and collect the contractual cash flows till the maturity, then I will classify the amortized cost. Then if the business model is to collect the cash flows and to sell financial assets before maturity, then I can classify into FVOCI. And if none of the is my business model, then it will go to FVTPL. Now derivatives. Derivatives is something that will always be shown in FVTPL only.
I have no option to classify it amortized cost or FVOCI. Same with the equity. Equity can be classified in the FVOCI if I choose the irrevocable option to show it as FVOCI only. And held for trading, if it's held for trading, then it will be shown in FVTPL only. Now, why it's important to classify the financial assets? Well, it's depend on its accounting. If any my financial assets are under amortized cost, then initial recognition will be fair value plus transaction cost. Its subsequent recognition will be amortized cost only. I will not compare it with the fair value of the asset at the end of the financial period. Now, since I'm not comparing it with the fair value, there will be no unrealized gain recognized. And the interest and dividend will be recognized to P&L only, and unrealized any realized gain at the time of its maturity will be passed through P&L. If any debt classified into FVOCI, then हम it's कहाँ पहुँचे? accounting of the financial assets. Analysis of modified opinion पे accounting standard पे आ गया. ये It's actually in cases पे modified opinions हुए, जैसे कि initial recognition के अंदर fair value का नहीं हुआ, and interest के अंदर इन लोगों ने recognize नहीं किया है. चलो बताओ एक बार आपके हिसाब से. So effective interest needs to be booked in book for the FVOCI. Now here, if I explain some concepts here, that as per the index, I have to recognize my assets at the fair value at the end of the accounting period, and my P&L, any interest on it needs to be booked through P&L, and it must be effective interest. Now, at FVOCI, all the transactions, realized gains pass to retained earnings and reclassifiable, and with FPL, everything goes to P&L only. Now, for classification of financial assets, financial liabilities held for trading, financial liabilities held for designation and FVTPL on initial recognition, contingent consideration, and derivatives. These are to be shown through fair value through profit and loss. And remaining is to be shown as amortized cost only. Same with the its accounting, that amortized cost is to be it's same as the financial asset only. Now, impairment concept of financial assets. Impairment of financial assets is to be done for only those financial assets whose in which contractual cash flows are there. And the assessment of impairment is to be done only when there is an increase in the credit risk of the payments. It's like any payment is missed by the party, they not paid. And calculation is to be done by comparing the carrying value with the present value of expected cash flows. Now we understand the concept of expected credit loss. Expected credit loss is like provision for doubtful debts in AS. It's a provision that we create that in future I am expected that this much amount that will not be recoverable. I will record a provision for that much amount in the books right now only. Here's a twist: it's distributed in 3 stages: stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 is where I have the state credit risk possibility is very mild, and in such case I will see the future 12 months only. What's the possibility of that my future 12-month cash flows will be I will not be able to receive the future 12-month expected credit. There will be a loss of credit. So effective interest will be that much amount will be provision for that much amount will be made in the books of accounts, and there will be no change in the interest rate calculation. I will initially gross carrying amount ही मैं interest बनाऊंगा, and then there comes the stage 2. Stage 2 is where the risk of the credit risk increases. It's something where I will see the expected lifetime credit loss of the part of the creditor. And then there's the stage 3. Stage 3 is where the impairment happens. Impairment is where it's like it's a very it's very possible that the future cash flows will never be realized,
and so I will impair the amount, and the effective interest future that I recognize in the through P&L will be calculated on the net value only after impairment. So under ECL approach, loss allowance should be created and reassessed each balance sheet date. ECL percentage amount can be calculated based on historic credit loss. These are the three methods that can be used: loss rate method, probability of default approach, and debtors aging schedule. It's depend on the past data, that what was the loss rate of the financial asset. The probability of default approach is depending on the future data. What's the probability that in future they will make a default? And debtors aging schedule. It's a aging schedule, and we according to the aging, we determine the percentage that needs to according to which our provision needs to be made. Now, de-recognition of financial assets. Right? It's basically covering that I have to de-recognize an asset as in when my rights to collect the cash flow is passed on to another entity. As the entity's contractual right to receive, if I see the chart, then determine whether the de-recognition basis of the video, all the assets have the right to cash flow from the asset expired. If yes, then de-recognize the asset. If no, then has the transferred the contractual right. Then if yes, then entity has substituted all the. If the rights on a substitution all the risk and rewards have been transferred, then I will de-recognize the asset. And if not, then I will continue to show in the books only. Now, if I look at the chart of the basis of modifications, my 32% of the modifications were due to non-recognition of interest expense. The entities have not only have not recognized the interest expense only in the books there. Now, non-reconciliation of balances, it's covering actually external balances. My at the end of the financial period, my balances are not reconciled due to the external non-response of the external confirmation by the parties. Determination of fair value. Around 40% of the reasons of modifications were that entities are not even determining the fair value of the financial assets. And the expected credit loss. Expected credit loss is that provision. There is a modifications are due to that there is a mismatch in the provision that needs to be created, and that has been actually recognized in the other reasons. If we see some of the qualifications, then company's management has provided that permanent diminution in the value of investment made in listed entities aggregating to 1,36,87,968 based on the information available on the MCA portal. The said companies are either in the process of liquidation or insolvency. Updated financials and status of liquidation insolvency process is not available for verification. Due to the lack of appropriate information, management is unable to determine the exact amount of provision required. The management is required to de-recognize the investment amount in the books of accounts, but financial impact due to diminution in the value of about investment on financial statements is presently indeterminate, and the assets and surplus of the company are overstated to the extent. Therefore, in auditor's view, the constitute of departure from the Ind AS 109, the companies has not charged interest on loans and advances made to the and also not taken. So basically, here the investment value has not been demonized as the liquidation process, and the entity in which I have invested is in the liquidation and insolvency procedure. But I have still not de-recognized the value of it. Now, the management response is that the company has made long-term investment in the listed entities in earlier years. It has come to the notice of company that companies are in the process of liquidation. Updated financials or present status of liquidation is not available. Now, management response is that the updated financials of the entities that is liquidating is still not available to us. That's why we are not de-recognizing the same. Therefore, at present, exact amount of permanent diminution is not ascertainable. Now, this is the case where the fair value has not been determined. As per India's financial investments and equity shares recognize at fair value, but the entity has shown its value at the cost only at 0.45 crore. Only is appearing in the India's balance sheet as on 31st March 2022. Therefore, the impact of amount of the difference between the fair value and cost of non-current investment cannot be ascertained.
Management estimation on the impact of modification is close to fair market value. मैनेजमेंट का कहना है कि उसका जो एस्टिमेशन वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू के अराउंड बहुत एस्टिमेट बहुत ज्यादा इक्वल ही है, ज्यादा मेजर डिफरेंस होने के ना होने की वजह से वो कॉस्ट ही दिखा रहे हैं. We draw attention to the note number 44 to the financial statements, which indicates that loans receivables of 1,080 lakhs, which have significantly increased in credit risk, in respect of which company has not made any assessment of expected credit loss. We draw attention to the note number 45 of the financial statement, which gives the credit receivables amounting to 2,780 lakhs, which has significant increase in credit risk, as the management considers such balances as good and recoverable. So these are the two balances for which no credit risk has been recognized. The company is in the process of recovery of this loan. ये मैनेजमेंट का कॉल इस पे ये दिया गया है कि वो ऑलरेडी रिकवरी के प्रोसेस में है और वो इनको है ये बिलीव कि वो उनसे रिकवर कर लेंगे. So no provision is being made. There is a delay in the payment of interest and installments of some of the lenders. In some cases where there is dispute with the lenders, the management has decided not to provide interest. It proposed to provide at the time of settlement. During the year, companies maintained some of the stocks which are non-moving. During the year, sundry debtors amounting to 1,262 lakhs outstanding for more than 3 years has been classified as other non-current assets, out of which some of the debtors are disputed and litigation is pending. Management has decided not to provide for these doubtful debts in view of the possible adverse effect on recovery and litigation. Accordingly, the loss of the year is understated and debtors have been a total amount of 1,061, including the loan advancing parties, and not given confirmations of them. There are two issues. No confirmation has been received from the parties. So my last balance cannot be reconciled with them, and I have not recognized a provision for the dispute that I have with the debtor. इतनी तेज तालियां ऐसे बोलती है क्योंकि क्लास कर. So इसका जो presentation था, I think he has beautifully covered first the financial instruments, और उसके बाद में इसने जो observations बताई, so they were basically linked with what he has explained in the while explaining the standard. So that was good, but actually क्या होता है कि वो पिछली बार भी कौन था वो क्या नाम था उसका विराट कोहली था. तो वो बस वही कवर ड्राइव पे ही चौका मार रहा है. तो उससे क्या है कि ऑडियंस जो है वो एंगेज नहीं हो पाती है. दैट इज द रियल चैलेंज व्हिच ही हैड. हालांकि माधव ने आप लोगों को एंगेज करके प्रेजेंटेशन दिया, बट बोथ ऑफ देम ऋषभ और श्रवण, ये लोगों ने थोड़ा सा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे छक्के नहीं लगाए, बल्कि केवल कवर ड्राइव बोलते हैं इसको, पॉइंट केवल पॉइंट पे ही इन्होंने चौके जड़े कलाइयों का उपयोग करते हुए. ऐसे बोलते हैं ना, कलाइयों का उपयोग कवर ड्राइव, कलाइयों का उपयोग कवर ड्राइव. तो बस अच्छा. तो क्रिकेट की सबको अच्छी समझ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कम है. सो बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया. मतलब जो तरीका था वो बिल्कुल सही था. फिर जो लिंक करना था कि जो ऑब्जर्वेशन आई तो उसके साथ में फिर उसको जो इसने एक्सप्लेन किया उसके साथ इसे लिंक करना था, वो लिंक नहीं किया इसने. तो आगे से आप ध्यान रखो कि हम जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करें तो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उसको समझ पाए, है ना. आप थोड़ा घूमते रहो, इधर आओ उधर आओ, बट क्या है ना कि ये इतना बड़ा प्रेजेंटेशन था. आई थिंक इसके ऊपर बहुत तैयारी चाहिए, लेकिन हम लोग हैं कि जब भी ऐसा कोई प्रेजेंटेशन आता है और
मेरे को तो मैं आपको मेरा खुद का बताता हूँ कि मैंने पहली बार IFRS पे बोला था ईयर 2009 में, rather 2008 दिसंबर में. Until then I was into the practice of taxation. आपने टर्मिनल की प्रैक्टिस करता है. I used to argue as a authorized representative of the clients. तो जो पहला मेरा लेक्चर था बॉम्बे में on IFRS and very मतलब मेडल लेक्चर था, and I actually could not sleep for 7 days. मैंने परवाल साहब को बोला कि सर मेरे को ये प्रेजेंटेशन देना है और सारा आईटीटी आज से 1 हफ्ते के लिए बंद, और ऑफिस में तेरे को बंद नहीं करना है था. प्रेजेंटेशन दे दिया था मुझे. बट द पॉइंट इज कि आपको प्रिपेयर्डनेस वैसी करनी पड़ेगी जब आपको पता है कि यार मेरे को यहाँ पे 70-80 बच्चों के सामने बोलना है. तो उसके लिए जब तक आपको, जब आपका मैडम प्रेजेंटेशन है या पहला दूसरा प्रेजेंटेशन है और आपके पास में वो स्किल्स नहीं है, तो आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो सकते हो, समझने में इंटेलिजेंट हो, बट जो तक आपके पास वो स्किल्स नहीं आ रही है, आपको, मैं ये समझता हूँ कि नींद ही नहीं आनी चाहिए. तो दैट इज काइंड ऑफ seriousness which you should have while you are here in the class. तो अगर वो सीरियसनेस के साथ काम करोगे तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन भी पहले नहीं तो दूसरी बार में आ जाएगा. और अगर वो सीरियसनेस खो दी है आपने कि नहीं यार एक बार चलो कर लेते हैं, तो दैट वो आपको मन में आना चाहिए कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल टू द पॉइंट सब लोगों के दिमाग में घुसनी चाहिए, वो वैसी मेहनत चाहिए. तो वो कहीं ना कहीं कमी है. बट यस वी हैव डन गुड एफर्ट्स. इन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, कितना रिलेवेंट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानना, है ना, और उसके बेसिस पे जैसे इन्होंने एक पहला एग्जांपल दिया था कि साहब जो क्वालिफिकेशन वाला था रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन कंपनीज, तो पता चला कि साहब वो कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई और आपका इन्वेस्टमेंट उसके अंदर चला आ रहा है. सो दे हैव नॉट एंश्योर्ड कि साहब ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो इसका एक्चुअल में वैल्यू क्या होना चाहिए. बिकॉज जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि साहब आपको एट एवरी रिपोर्टिंग डेट यू नीड टू असेस द फेयर वैल्यू. तो ये ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जहां पे आपको नॉट ओनली दिस, ये तो आपको हर बार ही देखना है, लेकिन क्योंकि ये लिक्विडेशन में थी तो these special things were also not considered for the purpose of reporting in the financial statements. So the companies would have considered that यार ये लिक्विडेशन में है तो इसका फेयर वैल्यू क्या आ रहा है ये मैं असेस कर लूं, and based on that they should have accounted for the loss which has not been done by them. तो कई बार हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हम देखते हैं कंपनी में किए हुए हैं और वो उसी वैल्यू पे चलते आ रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग. आपको उनको क्वेश्चन करके और प्रॉपर्ली अकाउंट को लाना होता है. देन अनदर इज जो इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि साहब इसकी तो कॉस्ट ही फेयर वैल्यू है, सो दैट एक्सप्लेनेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल कि किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो फेयर वैल्यू. सो अगेन द मैनेजमेंट शुड हैव done the fair value through profit and loss accounting for all those investments. और अगर कोई OCI है तो fair value through OCI का उनको accounting करना चाहिए. तो ये चीजें minute है but they ultimately छोटी है but they ultimately affect our reporting. So I think good attempt have been made by all our speakers. We can now go for quiz.